students, this is Radhika Gaur with the session number 14 of your chapter How Do Organisms Reproduce, and in this session we are going to discuss about question answers of SAT 1. That is, in this session we will discuss about the in-text question answers of our NCERT textbook. So let's start with the question number 1. What is the importance of DNA copying in reproduction? रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो डीएनए कॉपिंग होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है? Actually, it is responsible for the transmission of parental characteristics to the offsprings. जो DNA copying होती है वो responsible होती है for the transmission of parental characteristics to the offsprings. Offsprings में जो parental characteristics होते हैं उनके transmission के लिए ही जो DNA copying होती है वो responsible होती है. During DNA copying in reproduction, the changes occur due to the inheritance of traits from both the parents which lead to certain genetic variation which are useful for the evolution of species over the time. जब DNA copying होती है reproduction में तो कुछ changes होते हैं. उन changes होने की वजह से क्या होते हैं? जो changes होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? Inherited traits की वजह से जो दोनों parents के through आते हैं. Clear? उनकी वजह से क्या होता है? कुछ जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं और जो वेरिएशंस होते हैं वो यूजफुल होते हैं फॉर द इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज ओवर द टाइम. Thereby DNA copying is useful for the I mean to say it is having a great importance in the reproduction because during DNA copying in reproduction the changes occur due to the inheritance of traits from both the parents which leads to certain genetic variation which are useful for the evolution of species for over the time. Next question is, why is variation beneficial to the species but not necessary for the individual? क्यों जो वेरिएशन है वो किसी भी स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल तो रहता है लेकिन जरूरी नहीं होता. एक्चुअली वेरिएशन अलाउज ऑर्गेनिज्म टू एग्जिस्ट इन डाइवर्स हैबिटेट्स. जो वेरिएशन है वो क्या अलाउ करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो डाइवर्स हैबिटेट्स में रह पाए. In their absence, a species may remain restricted to a particular area. यदि variations नहीं होंगे तो उनकी absence में जो species है वो किसी एक particular area तक limited रह जाएंगी, restricted रह जाएंगी. If this area gets altered due to various natural or man-made causes, the species may be wiped out. और यदि ये एरिया अल्टर कर दिया जाए किसी भी नेचुरल और मैनमेड कॉजेस की वजह से तो जो स्पीसीज होंगी वो वाइप्ड आउट हो जाएंगी. दैट इज उनकी एग्जिस्टेंस नहीं बचेगी. देयरबाय जो वेरिएशंस है वो बेनिफिशियल होता है किसी भी स्पीसीज के लिए बट जरूरी नहीं है कि हर इंडिविजुअल के लिए वेरिएशन होना नेसेसरी है. However, if some variation were present in few individuals, this would help them to colonize other habitats and survive. यदि वेरिएशन प्रेजेंट है कुछ इंडिविजुअल्स में तो वो क्या करेगा? वो उन्हें हेल्प करेगा टू कॉलोनाइज अदर हैबिटेट्स एंड सर्वाइव. बट इफ वेरिएशन आर प्रेजेंट इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, यदि वेरिएशन सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है देन देयर वुड बी अ वेरी लिटिल चांस फॉर इट टू सर्वाइव. तो सर्वाइवल का काफी कम चांस होगा. Next question is, how does binary fission differ from multiple fission? Binary fission multiple fission से कैसे different रहता है? आप देख सकते हो binary fission में the parent organism splits to form two new organisms, but in multiple fission the parent organism splits to form many new organisms at the same time. Clear? Binary fission takes place during favorable environmental condition, but multiple takes place during unfavorable environment conditions. In binary fissions, it takes place in organisms like amoeba, paramecium, etc. But multiple fission takes place in organisms like plasmodium. मेन क्या रहता है कि जो binary fission है उसमें जो organism है वो दो new organism में split होता है, but multiple fission में जो organism है वो more than two organism में split हो जाता है at a same time. जो बाइनरी फिजन है वो फेवरेबल एनवायरनमेंट में होता है और जो मल्टीपल फिजन है वो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स? कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड रहेगा यदि वो रिप्रोड्यूस करता है थ्रू स्पोर्स? एक्चुअली स्पोर्स आर टिनी स्पाइरकल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज. जो स्पोर्स होते हैं वो टिनी, स्पाइरकल और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं. They are covered by a hard protective wall which enables them to survive in unfavorable condition and can only germinate and produce new plants
under favorable condition, thereby benefiting the organism from dying out. Clear that they are covered by a hard protective wall. ये जो होते हैं ये hard protective wall से covered रहते हैं, जो उन्हें enable करती है to survive in unfavorable condition, जिसकी वजह से वो unfavorable conditions पर survive कर सकते हैं. And can only germinate and produce new plants under favorable condition, और सिर्फ favorable conditions में ही वो plants को produce और germinate कर सकते हैं, thereby benefiting the organisms from dying out. Next question is, can you think of a reason why more complex organisms cannot rise to new individual through regeneration? आपको एक रीजन बताना है क्यों जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रीजनरेशन के थ्रू न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते. Actually, regeneration can be used to reproduce only those organisms which have relatively simple body organization, consist of only a few specialized cells or tissues. जो रीजनरेशन होती है वो कब होती है? रीजनरेशन तभी तो होती है जब जो ऑर्गेनिज्म है उनकी सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो, दैट इज उनमें कुछ ही स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट हो, ज्यादा उनमें सेल्स प्रेजेंट नहीं हो. While in complex or multicellular organism, specialized cells makes up tissues. जो complex multicellular organism होते हैं उनमें जो cells हैं वो tissues बनाते हैं. Tissues makes up organ. Tissues organ बनाते हैं. Organ system बनाते हैं और organ system finally organism बनाते हैं. तो क्या होता है उनमें जो organization का फंडा है वो काफी great होता है. Thereby उनमें regeneration possible नहीं होता. Since complex multicellular organisms have very high degree of organization in their body, they cannot be reproduced from their cut body parts by the process of regeneration. क्योंकि उनकी complex body होती है उनमें जो degree of organization होता है वो काफी high up होता है, इसीलिए वो regeneration के process से ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन नहीं कर सकते. जैसे ह्यूमंस की बॉडी को कट करेंगे तो कुछ फॉर्म नहीं होगा, ऑब्वियसली जो पर्सन है वो डेथ हो जाएगी उसकी. जबकि प्लेनेरिया की बॉडी को कट करो तो क्या होगा, प्लेनेरिया से एक प्लेनेरिया से काफी और सारे प्लेनेरियाज का फॉर्मेशन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स? Actually, it is because in vegetative propagation, new plants are obtained from the parts of old plants without the help of any reproductive organ. जो vegetative propagation होता है उसमें क्या होता है, उसमें new plants का production होता है by using old plants and without the help of any reproductive organ. Also, vegetative propagation usually involves the growth and development of one buds present on the old part of the plant to form new plant. वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, सिर्फ जो एक बर्ड है या एक से ज्यादा मोर बर्ड्स हैं उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैटर करती है. दैट इज यदि कोई सीडलेस प्लांट है तो भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू इजीली उसे ग्रो आउट करा सकते हैं. देयरबाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज डीएनए कॉपिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? जो डीएनए कॉपिंग होती है वो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन का एक एसेंशियल पार्ट क्यों रहती है? Actually, chromosomes in the nucleus of a cell contains information for inheritance of features from parents to the next generation in the form of the DNA, which is the information source of making proteins. Therefore, a basic event in the reproduction is the creation of DNA copy for the next generation. Clear? क्योंकि जो क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस में, जो सेल्स के न्यूक्लियस होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं जिनमें इंफॉर्मेशंस प्रेजेंट होती है फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स. जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में फीचर्स इनहेरिटेड होते हैं उनकी इंफॉर्मेशंस क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट रहती हैं, विच इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग पेरेंट्स, और वो डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं जो इंफॉर्मेशन सोर्स होते हैं फॉर मेकिंग प्रोटीन्स. क्लियर? देयरफॉर अ बेसिक event in reproduction is creation of DNA copy for the next generation. Next question is, how is the process of pollination different from fertilization? जो pollination का process है वो fertilization के process से कैसे different है? Actually, pollination में क्या होता है, the transfer of pollen grains from one anther to the stigma of a flower is called pollination. pollination में जो pollen grains हैं उनका anther से stigma पे transformation होता है, जबकि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल टू फीमेल गैमेट, दैट इज जो फीमेल गैमेट्स हैं और जो मेल गैमेट्स हैं उनका फ्यूजन होता है ताकि जाइसोट जो है उसका फॉर्मेशन हो और फर्टिलाइजेशन हो. जो पॉलिनेशन है इज इन्वॉल्व्स ओनली द मेल गैमेट्स, सिर्फ उसमें मेल गैमेट्स इन्वॉल्व रहता है, जबकि जो फर्टिलाइजेशन है इन्वॉल्व्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. क्लियर? दैट इज जो
गामेट्स हैं उनका एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जबकि जो फर्टिलाइजेशन है उसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर, वहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा था, सॉरी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। जो सेमिनल वेसल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं उनका रोल क्या रहता है? Actually, secretion from seminal vessels and prostate glands provide nutrition to the sperm and make their transport easier by providing them a fluid medium. जो seminal vessels और prostate glands होती हैं वो क्या करती हैं, वो कुछ seminal कुछ सीक्रेट करते हैं जो उन्हें जो स्पर्म्स हैं उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और उन्हें इजियर बनाता है एंड मेक द ट्रांसपोर्ट इजियर। और इनका ये भी वर्क रहता है कि जो स्पर्म्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट को वो इजियर बना देती है बाय प्रोवाइडिंग देम अ फ्लूइड मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे गर्ल्स में कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं? फर्स्ट, द ग्रोथ ऑफ हेयर्स इन आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन्स। जो आर्मपिट्स और प्यूबिक रीजन्स हैं वहाँ पे हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है। मेमरी ग्लैंड्स दैट इज ब्रेस्ट डेवलप्स एंड हिप ब्रॉडन। जो मेमरी ग्लैंड्स हैं जो ब्रेस्ट हैं वो डेवलप हो जाती हैं और जो हिप्स हैं वो ब्रॉडन हो जाते हैं। यूटेरस, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब्स एनलार्ज हो जाती हैं और जो पेल्विस है वो वाइडन हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन आल्सो स्टार्ट। इसमें क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन है और जो ओव्यूलेशन है वो भी स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। तो ये कैसे होता है? एक्चुअली आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, अ डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप्स बिटवीन द यूटेरस वॉल एंड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो और यूटेरस वॉल के बीच में क्या होता है, डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप हो जाता है जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्लियर, एंड इट इज थ्रू द प्लेसेंटा दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डेवलपिंग fetus लाइक न्यूट्रिशन, respiration and excretion etc. are met from the mother's body। और प्लेसेंटा के थ्रू ही जितने भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फर्टिस की, जैसे न्यूट्रिशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ या एक्सक्रिएशन हुआ, वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की जाती हैं बाय मदर्स बॉडी। क्लियर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ वुमन इज यूजिंग कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। यदि कोई भी वुमन कॉपर टी का यूज कर रही है तो क्या जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं उससे उसे प्रोटेक्ट कर पाएगी कॉपर टी? No, copper tea does not prevent the transmission of sexually transmitted diseases। Copper tea जो sexually transmitted diseases हैं उनके ट्रांसमिशन को कंट्रोल नहीं कर पाती है। Copper tea only prevents implantation। ये सिर्फ implantation को ही प्रिवेंट करती है। The only safe method that can be used to prevent the transmission of sexually transmitted diseases is condoms। तो only safe method कौन सा है? कोई भी सेफ मेथड जो हमें अप्लाई करना चाहिए इज टू यूज कंडोम्स। क्लियर, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स थे उनको सॉल्व आउट कर लिया। इन नेक्स्ट सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। टिल देन, गुड लक।